Hello everyone. Good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 8 in your NCERT book. The chapter name is Cell Structure and Functions. In previous class, we understand about what is cell. Cell is a basic structural and functional unit of all living organisms. Any living organism which is made up of which size is a very small and very big, all have a all body made up of a single unit of a cell. एक जो सेल है वो बार बार रिपीट होकर मे बी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मे बी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कितना ही स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और कितना ही बिग ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट आवर लाइफ विद सेल. ओके, yes, you understand this point. Organisms show variety in cell number, shape and size. First you saw this video, then we discuss in this topic. Variety in cell number, shape and size. In this module, you will learn that organisms show variety in cell number, shape and size. There are millions of living organisms found on Earth. However, all living organisms are different from each other in many aspects. For example, they are different in their shapes and sizes. Not only do the organisms vary in shape and size, the cells of different organisms too vary in terms of number, shape and size. For this, let us compare an amoeba and a human being. You can see that an amoeba is made of a single cell. A human being, on the other hand, is made of millions of cells. Organisms like amoeba that are made of only one cell are called unicellular organisms. A unicellular organism performs all the important life processes using only one cell. Some other examples of unicellular organisms include Paramecium and Euglena. On the other hand, organisms such as human beings that are made of more than one cell are called multicellular organisms. A multicellular organism has specialized organ systems to perform the different life processes. Some other examples of multicellular organisms include dog and cat. The cells in different organisms not only differ in their numbers, but also differ in their shapes. The different cells of one organism have different shapes. The shape of any cell is provided by its cell membrane. Cells may be round in shape, for example, fat cells. They can also be, for example, the muscle cells, pointed at both ends. Spherical in shape. Cells may be round in shape, for example, fat cells. They can also be spherical in shape, for example, the red blood cells. There are some cells that are long and pointed at both ends, for example, the muscle cells. Sometimes the cells are quite long, for example, the nerve cells. Not only the shape, the size of the cells also varies. Sometimes the cell is very tiny. Such cells are of the size of a few micrometers. Some cells, on the other hand, are large in size. These cells are of the size of a few centimeters. However, the size of the cell has no relation with the organism in which it is present. A large organism, such as an elephant, has very small cells too. Let's recap. The cells of organisms vary in number, shape and size. The organisms that have only one cell are called unicellular organisms. The organisms that are made of many cells are called multicellular organisms. Cells are found in different shapes. These include round and spherical, long
and pointed. ओके क्लास, आई थिंक आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा और जितना भी हमने इस वीडियो में रीड किया हम आपके चैप्टर में लाइन टू लाइन रीड करेंगे. ओके, there are millions of living organisms, they are different shapes, sizes. देखो millions of organisms हैं जिनमें different shapes और size present है. their organ also vary in shape और size. ऐसा नहीं कि elephant का जो liver है, human का liver है, dog का liver है, तीनों की shape और size एकदम सेम होती है. ऐसा नहीं होता. उनके जो organs हैं उनकी भी shape, size और number of cells सब differ करता है. नंबर ऑफ सेल की बेसिस पे यहाँ पर क्लियर किया गया है कि द नंबर रन इनटू बिलियन एंड ट्रिलियंस. एलिफेंट में, हैन में, ह्यूमन बीइंग में जो सेल्स के नंबर हैं वो बिलियंस और ट्रिलियंस नंबर्स में होते हैं. ह्यूमन बॉडी हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल्स व्हिच वेरी इन शेप्स एंड साइज. जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर सेल्स के जो नंबर हैं वो कितने ट्रिलियंस इन नंबर में होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में होते हैं. देन वी मूव टू अ मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. Multicellular organisms are those organisms made for a more than one cell. Any organism made up of a one or more than one cell is called a multicellular organism. Example of this: human, cat, dog. Okay, and some of the organisms, surprise to you, organism millions of cell begin life a single cell. अगर किसी भी ह्यूमन की, एलिफेंट की मिलियंस और ट्रिलियंस नंबर में सेल्स है, लेकिन उनकी जब लाइफ स्टार्ट हुई थी, ऑलवेज दे स्टार्ट देयर लाइफ इन सिंगल सेल. हमेशा वो अपने सिंगल सेल की में ही अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं. ठीक है, देन सेल मल्टीप्लाई and increase their numbers. Okay, and both organisms are made up of a single cell. The single cell organisms are called a unicellular organism. Uni means one and cellular means cell. A single cell organism perform all the necessary function. जैसे हम लोग मल्टीसेल्युलर हैं तो लंग्स हमारे रेस्पिरेशन में वर्क करते हैं, किडनी एक्सक्रीशन सिस्टम में वर्क करती है, ब्रेन थिंकिंग प्रोसेस में वर्क करता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम से हम अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं. तो ये सबके अपने अपने फंक्शंस हैं. लेकिन जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जस्ट लाइक अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना, दे डू देयर ऑल वर्क विद सिंगल सेल. एक सिंगल सेल से ही वो अपने सारे वर्क करते हैं. वो सिंगल सेल से रेस्पायर, एक्सक्रीट, ग्रो, रिप्रोड्यूस, वो जितने भी सब फंक्शन है वो सिंगल सेल में ही कंप्लीट करते हैं. Similar function in multicellular organisms are carried out by groups of specialized cell. लेकिन एक सेल के अंदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो भी फंक्शन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज बनते हैं. टिश्यूज टर्न इन ऑर्गन. टिश्यूज क्या करते हैं, टर्न हो जाते हैं किसके अंदर, ऑर्गन्स के अंदर. Okay, the teacher may show a permanent slide to amoeba. Because paramecium and amoeba are the microorganisms. Okay, they are not easily seen with our naked eye. अगर हमको इनकी स्ट्रक्चर देखनी है या इनके बारे में स्टडी करनी है तो हम किसके थ्रू स्टडी करेंगे बेटा, माइक्रोस्कोप के बेस पे स्टडी करेंगे. ठीक है, तो अगर आप स्कूल में होते तो मैं भी आपको स्लाइड शो करते. देन वी मूव टू अ नेक्स्ट पॉइंट इज शेप ऑफ सेल. जो सेल की शेप है वो किस चीज पे डिपेंड करती है कि पर्टिकुलर सेल किस टाइप का फंक्शन करेगी. सेल की जो स्ट्रक्चर है, शेप और साइज, दोनों चीजें उस पर डिपेंड करती है. हाउ डू यू फाइंड द शेप ऑफ अमीबा इन अ फिगर. आपने अमीबा की पिक्चर देखी अभी फिगर में. यू मे से दैट द शेप अपीयर इररेगुलर. आपने देखा कि जो अमीबा की शेप है वो कैसी है बेटा, इररेगुलर है. ठीक है, इनफैक्ट अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप अनलाइक देयर ऑर्गेनिज्म. दूसरे ऑर्गेनिज्म जो भी भले सिंगल सेलुलर है उनकी शेप कम से कम फिक्स होती है, बट अमीबा की शेप और साइज फिक्स नहीं होती. टाइम टू टाइम वो अपनी शेप और साइज को क्या करते रहती है, चेंज करती रहती है. Okay, it keep on changing itself. Observe the projections of verifying leg producing out of its body. These are called pseudopodia. Pseudo means false, podia means feet. In class 7th you also read about that कि how amoeba move to one place to other और how amoeba intake our food. कि किस प्रोसेस से अमीबा अपने फूड को इंटेक करता है. तो in that topic you read about that कि this type of amoeba structure. और जैसे ही फूड पार्टिकल यहाँ पर होगा, it increase their false means pseudopodia. This one is also pseudopodia, this one is also pseudopodia, and cover it and eat it. तो वो मूवमेंट के लिए, अपने फूड को कैप्चर करने के लिए फॉल्स फीट प्रिपेयर करती है. उसी को हम क्या बोलते हैं, pseudopodia. as you learn class 7, आपने क्लास 7 में देखा. these projections appear and disappear. ये जो प्रोजेक्शन से appear होते रहते हैं, जैसे फूड कैप्चर कर लिया या जो मूवमेंट करनी थी वो मूवमेंट हो गया तो वापस ये डिसअपियर हो जाते हैं अमीबा के अंदर.
ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्शन है या स्यूडोपोडिया है अमीबा में, ये अपीयर और डिसअपीयर होते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट पे अपीयर होंगे जहां पर मूव और फीड जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट एडवांटेज डज अमीबा डिराइव द चेंजिंग शेप, ये अपनी शेप को चेंज करने का इनको क्या हेल्प है? एक तो ये अपने फीड के लिए, खाने के लिए इधर उधर इजीली मूव कर सकती है, मूवमेंट में हेल्प करते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। ओके, द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया व्हिच फैसिलिटेट मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। तो उसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई वो अपनी शेप को चेंज करती है स्यूडोपोडिया के थ्रू, तो ये इसको फैसिलिटेट करता है किसमें? फर्स्ट वन इज मूवमेंट एंड सेकंड वन इज कैप्चरिंग फूड। ओके ओके, जस्ट लाइक अ अमीबा, जैसे अमीबा की शेप और साइज क्या नहीं है? फिक्स नहीं है। तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी सेल है जो जस्ट लाइक अ अमीबा वर्क करती है? ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी सेल है। डब्ल्यूबीसी मींस देखिए हमारा ब्लड जो है उसमें कितने टाइप की, 3 टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, और लिक्विड होता है उसको हम प्लाज्मा बोल देते हैं। तो हमारा ब्लड जो है, जो फ्लूइड पार्ट है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। उसमें 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, आरबीसी, WBC and platelets. I think you all are here, all the name. RBC means red blood cell, white WBC means white blood cell. Platelets जो होते हैं क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल का क्या काम होता है? हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन आता है तो ब्लड तो हमारी बॉडी में हर जगह मूव करे। व्हाइट ब्लड सेल एज अ सोल्जर वर्क करते हैं। कोई बाहर से कोई एंट्री हुई, सोल्जर्स का काम क्या होता है? उसको एंड करना, खत्म करना। जस्ट लाइक दैट WBC का वर्क भी यही होता है, कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन जब हमारी बॉडी के अंदर आता है उसको मारने का जो काम होता है वो किसका होता है? WBC का होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी डिजीज का कोई बैक्टीरिया या वायरस मेरी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो मेरी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो WBC की नंबर्स को इंक्रीज कर देता है। जैसे सपोज करते हैं कि मान लीजिए मेरे अंदर कोई वायरस आ गया है और उसके बाद में मैं 1 या 2 डेज के बाद में मैं अपना ब्लड टेस्ट कराती हूँ तो देन लिम्फोसाइट्स के नंबर, ठीक है, आरबीसी का एक अदर नेम इरिथ्रोसाइट्स है जो आप थोड़ा सा बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और WBC का जो नेम है वो लिम्फोसाइट्स है, आपने रीड किया हुआ वो भी होगा। तो आप देखेंगे आपने कभी भी आपके घर पे कोई भी ब्लड रिपोर्ट होगी उसमें लिम्फोसाइट्स वर्ड जरूर होगा। तो आप देखेंगे कि अगर किसी पर्सन के लिम्फोसाइट्स इंक्रीज होते हैं दैट मीन कोई ना कोई एंटीजन फॉरेन पार्टिकल उनकी बॉडी में एंटर हुआ है, तभी बॉडी के अंदर WBC के नंबर्स क्या हुए हैं? इंक्रीज हुए हैं। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ओके, तो WBC का अदर नेम लिम्फोसाइट्स भी है, व्हाइट ब्लड सेल भी है। इट एक्ट लाइक अ सोल्जर इन आवर बॉडी, और just like a amoeba, WBC doesn't have a proper shape. ओके, इसके अंदर भी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है। एंटीजेंस को जैसे अमीबा कैप्चर करता है ना फूड को, तो अमीबा हमारी बॉडी की जो WBC है वो भी इसी तरीके के प्रोजेक्शंस बनाकर और उस जो भी एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल है उसको कैप्चर करती है एंड अपने अंदर लेकर उसको डाइजेस्ट कर देती है, एंड कर देती है। बट वाइल WBC इज अ सेल, देखो अमीबा तो एक एनिमल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। WBC इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट इट कैप्चर देयर फॉरेन पार्टिकल में भी एंटीजन जो भी है उसको उसी तरीके से कैप्चर करती है। ओके, अमीबा इज फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। देखिए यहाँ उस पे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि व्हाट सिमिलरिटी बिटवीन अमीबा एंड WBC एंड व्हाट डिसिमिलरिटी बिटवीन अमीबा एंड WBC। I think you all are able to answer both the questions। ठीक है, फंक्शंस में हेल्प करे बट WBC एक सेल है, अमीबा एक फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म है, ये इनमें डिफरेंस है। ओके, what shape would you expect an organism with millions of cells? आप क्या कहते हैं जिसके अंदर मिलियंस ऑफ नंबर्स में सेल प्रेजेंट है। ओके, फिगर 8.4 शो डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड, मसल एंड नर्व। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है उनकी बॉडी के अंदर मसल्स भी हैं, नर्व भी हैं, ब्लड भी है। देखो ब्लड का क्या फंक्शन है आपको पता है, मसल्स क्या चीज है वो आपको पता है। आपको पता है बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर हमारी नर्व होती है, हमें चोट लगी है, हमें कोई चीज गर्म लग रही है, उसका मैसेज ब्रेन तक ले जाने का काम, और ब्रेन से मैसेज को वापस पर्टिकुलर उस ऑर्गन तक लाने का काम किसका होता है? नर्व सेल का होता है। ओके, द डिफरेंट शेप आर रिलेटेड, लेकिन जो ब्लड सेल है, मसल सेल है एंड जो ये हमारी नर्व सेल है, इन सबका शेप और साइज और फंक्शन सेम होगा? नहीं होगा। अभी हमने वीडियो में भी देखा कि WBC का सॉरी RBC का अलग शेप है, मसल का दोनों तरफ से पॉइंटेड एंड लगे हुए हैं, और नर्व सेल जो है हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है।
ठीक है, देखो सबसे हमारी ह्यूमन बीइंग की बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो क्या है बेटा, स्पर्म है। ठीक है, अभी आपने पिक्चर में स्पर्म देखा था, सबसे स्मॉलेस्ट टाइनीएस्ट सेल जो होगी वो स्पर्म होती है। और सबसे लॉन्गेस्ट जो सेल है वो हमारी बॉडी की कौन सी सेल होती है बेटा, नर्व सेल होती है। ओके, द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर, नर्व सेल का फंक्शन क्या है, देखो यहाँ मेंशन किया हुआ है, नर्व सेल का फंक्शन क्या है, द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर द मैसेज। वही बाहर से एक नर्व है जो मैसेज लेके जा रही है कि मेरा हाथ गर्म चीज पर लगा है, वो मैसेज कहाँ रिसीव करके कहाँ भेजा, ब्रेन में, और ब्रेन ने उसके रिप्लाई में आंसर दिया हमें वहां से हाथ हटाना है, तो ब्रेन ट्रांसफर करता है मैसेज को, और वो मैसेज वापस नर्व के थ्रू हमारी उस पार्ट तक आता है और हम अपने हैंड को हटाते हैं। तो नर्व सेल का मैसेज वर्क दो हो गए, एक तो मैसेज को आगे आगे ट्रांसफर करना और मैसेज को रिसीव करना। Here the picture of RBC, first one. I think you all are identify which one is RBC. And second one is spindle shape. Spindle means क्या होता है बेटा, दोनों एंड छोटे होते हैं, फिर पतले हो जाते हैं। ठीक है, दिस वन इज स्पिंडल, स्पिंडल शेप मसल सेल्स होती हैं, एंड देन दिस वन इज लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल। ठीक है, ओके, helping to control and coordinate working to different part of the body. Can you guess which part of cell give it shape? आप क्या बता सकते हो कि जो सेल है उसकी बॉडी को शेप देने का वर्क किसका होता है? ऑब्वियस सेल मेम्ब्रेन। किसका होता है? सेल मेम्ब्रेन का। कंपोनेंट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, सॉरी, कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। जितने भी कंपोनेंट्स हैं भाई, आरबीसी के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, नर्व सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, या आपने प्रीवियस क्लास के अंदर जो एक वीडियो देखा था, कितने सारे कंपोनेंट्स है, सेल ऑर्गेनल्स हैं, उन सबको एक मेम्ब्रेन है जो अंदर एनक्लोज करके रखती है। दिस लेयर नेम इज अ सेल मेम्ब्रेन। उसी के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? सेल मेम्ब्रेन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, this membrane provide the shape to the cells of plant and animals. Cell wall is an additional covering over the cell membrane in plant cell. It gives a shape and rigidity to these cell. Bacterial cell also have a cell membrane. Here is a one difference arises in this chapter. One most important question is what difference between a plant cell and animal cell. ठीक है, here we discuss only one point. All animals have a outer membrane is a cell membrane, but in plant cell, in bacterial cell, have outer layer जो होगी वो कौन सी होती है? एक रिजिड, एक हार्ड लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। सो ऐसा नहीं कह रही हूँ कि प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी। ओके, तो प्लांट सेल जो है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होगी, बट प्लांट सेल के अंदर उसके बाहर की तरफ क्या एक और कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल वॉल बोलते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। तो यहाँ से आपको एक डिफरेंस लर्न हो रहा है कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, they don't have a cell wall, and plant cell have a cell wall. Next, bacterial cell also have a cell wall. Okay, next, sizes of cell. Size जो है वो कितना होता है? एक स्टूडेंट ने कल क्लास में भी पूछा था, the size of cell in living organism may be as small as a millionth of a meter. भाई बहुत स्मॉल भी हो सकता है और एक मिलियंस ऑफ माइक्रोमीटर और इससे ज्यादा भी हो सकता है, और मे बी लार्ज ऑफ फ्यू सेंटीमीटर। भाई माइक्रो मिलियंस मतलब मिलीमीटर, माइक्रोन्स में भी हो सकता है, यानी माइक्रोमीटर में भी हो सकता है, और मे बी सेंटीमीटर्स में भी हो सकता है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोप इन साइज। मोस्टली जो सेल होती हैं वो माइक्रोस्कोपिक इन साइज होती है, मींस हम इजीली वी आर नॉट एबल टू सी विद आवर naked eye. Okay, but some cells are we saw directly without using a microscope. Okay, they need to be enlarged and magnified by the microscope. माइक्रोस्कोप से जो दिखाई नहीं देती उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से एनलार्ज कर लेते हैं, मैग्नीफाई कर लेते हैं, जस्ट लाइक अ बैक्टीरियल सेल। दिस वन इज अ वेरी स्मॉलेस्ट सेल, 0.1 माइक्रोन टू 0.5 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। और लार्जेस्ट सेल में अपन ने कल भी बात की थी, लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग, द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। कितना होता है? 170 mm to 130 mm इसका साइज होता है। तो दिस वन इज लार्जेस्ट सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरियल सेल एंड लार्जेस्ट सेल एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। बॉयल एन हेन्स एग, रिमूव द शेल। आप एग शेल को, सॉरी
hen के एग को बॉईल कीजिए और उसके ऊपर अपर लेयर को रिमूव कीजिए. एक व्हाइट मटेरियल सराउंडेड द येलो पार्ट. व्हाइट मटेरियल इज एल्बुमिन. जो ऊपर जो व्हाइट पार्ट होता है उसमें एल्बुमिन प्रोटीन होता है. एंड अंदर जो सॉलिडिफाई है, ये जो प्रोटीन की क्वालिटी होती है कि जैसे ही उसको हीट मिलती है वो सॉलिडिफाई हो जाता है. और येलो पार्ट जो होता है इन बिटवीन, उसको हम क्या बोलते हैं? योक बोलते हैं. आई थिंक इट्स क्लियर. एल्बुमिन एंड योक. ठीक है. इट इज अ पार्ट ऑफ अ सिंगल सेल. ये दोनों पार्ट जो है वो एक सिंगल सेल के ही पार्ट है. यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाई. आप इस सेल को बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो विदाउट मैग्नीफाइड डिवाइस. यहाँ पर वन क्वेश्चन है, कई बार ऐसे सोचते हैं कि आर द सेल इन द एलिफेंट लार्जर देन इन द रेट. देखिए रेट और एलिफेंट है, ठीक है, दोनों की सेल्स जो हैं वो इक्वल साइज की होती है. ऐसा नहीं एलिफेंट बहुत बड़ा है तो उसके अंदर बहुत लार्ज लार्ज सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और रेड बहुत छोटा है तो उसके अंदर बहुत छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट होती हैं. ऐसा नहीं होता. अगर रेड का साइज छोटा है, स्मॉल है, तो दैट मीन्स क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स कंपैरिजन टू एलिफेंट रेड के अंदर क्या होंगे? कम होंगे. और कंपैरिजन टू रेड एलिफेंट में नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे कंपैरिजन टू रेड क्या होंगे? ज्यादा होंगे. लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई बिग साइज का एनिमल है, मे बी डायनासोर है, एलिफेंट है, व्हेल है, तो उसके अंदर ऐसा नहीं कि जो सेल्स के साइज है वो बहुत लार्ज हो जाता है, नंबर्स ऑफ सेल ज्यादा हो जाती है. ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि साइज डिपेंड नहीं करता है सेल के बिगर होने में और स्मॉल होने में. जितना बड़ा, जितना लार्ज एनिमल होगा उसके अंदर उतने ही नंबर्स इंक्रीज होंगे. The elephant be much bigger than those in a rat. The size of the cell is related its function. जो साइज होता है सेल का वो उसके फंक्शन के रिगार्डिंग होता है कि एक्चुअल में जो है उनको करना क्या है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच टू परफॉर्म द सेम फंक्शन एंड दैट ऑफ ट्रांसफरिंग सेंड. तो रेड के अंदर और एलिफेंट के अंदर सेम साइज ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, सेम फंक्शन करती है, बस नंबर्स इंक्रीज होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. We discuss in our next class. Okay.